Good morning students. Today in online class we had started the topic special purpose book second other books, and in special purpose books we have to prepare different types of books such as purchase book, sales book, cash book, purchase return book, sales return book and journal proper or general journal. We have to make these books. Now first we are taking purchase book. Only 2 points you have to keep in your mind. Number one, we have to take only the credit transactions. What better? Number one is only credit transactions are to be taken. Credit transactions are to be taken. Cash transaction will not be taken. It means cash transaction will not be taken. Only cash transactions are to be taken. Means credit transactions are to be taken. Cash transactions must not be taken. And second thing is that we have to take only the goods in which we are dealing. So dealing goods we have to take. If we are the business of cloth, so we have to take entries only of cloth. If we are having the business of general store, then we have to take entries of general store only. If we are having the business of stationery, then we have to take only the transactions of stationery. So these 2 points are important, which we have to keep in our mind while preparing purchase book. So first of all, we have to write down the name. It is page. We are taking question number 1 of the book of T.S. Garwal, and page number is 11.34. 11.34 page number. Question number 1. That is 2020 edition book. Record the following transactions in purchase book of Subhash General Store, Delhi. So first we will write the heading Subhash General Stores, Delhi, purchase book, and now the columns are very simple. Date, next particular, date, particular, voucher, VN मतलब voucher number, LF details, and next is amount. First transaction is 2020 May 1st, bought from Messrs Chunni Lal Mamraj, Delhi. He is the businessman of general store. So we have to take only the entry of transaction of business of general store. Bought from Messrs Chunni Lal, so 2020 May 1st, Messrs Chunni Lal Mamraj, Delhi. 100 bags of ITC wheat atta at the rate 530 rupees per bag. So 100 bags ITC wheat atta at the rate 530 per bag. तो अमाउंट कितना बनेगा बेटा? 100 बैग्स हैं, 530 रुपीज़ का एक बैग है, टोटल 53,000 रुपीज़. नेक्स्ट इज 20 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट 500 रुपीज़ पर बैग. तो 50 बैग्स राइस बासमती एट द रेट 500 रुपीज़ पर बैग. तो टोटल अमाउंट विल बी 25,000. टोटल अमाउंट 53,000 एंड 25,000 78,000. ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन 10%. तो माइनर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%. 10% मीन्स जीरो कम करना और कुछ नहीं करना हमें कैलकुलेशन में. जीरो कम कर दीजिए 7,800. 78,000 में से 7,800 माइनस कर दीजिए, अमाउंट में आ जाएगा 70,200. नेक्स्ट बेटे बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली. तो हेडिंग जनवरी May 3 को है मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली. 40 टिन्स ऑयल एट द रेट 1,500 रुपीज़ पर टिन. तो 40 टिन्स ऑयल एट द रेट 1,500 रुपीज़ पर टिन, ये बना बेटे 60,000 रुपीज़. फिर कहा बेटे 20 टिन्स बासमती ऑयल एट द रेट 900 रुपीज़ पर टिन. तो 20 टिन्स बासमती ऑयल एट द रेट 900 रुपीज़ पर टिन, ये बना बेटे 18,000. कुल मिलाकर के हो गया 78,000 रुपीज़. माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5% ट्रेड डिस्काउंट है बेटे. तो 5% ट्रेड डिस्काउंट 78,000 का 5%. 78,000 5% कैसे निकालेंगे बेटे? पहले जीरो कम कर दो, ये बना 7,800, उसका हाफ कर दो बेटे. तो ये 5% बन जाएगा हमारा. अमाउंट बाहर आ जाएगी 74,100 रुपीज़. ठीक है बेटे. नेक्स्ट इज May 4 को है परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़. तो हेडिंग आ जाएगा गुप्ता ब्रदर्स हापुड़. 25 बैग्स ग्राम एट द रेट 480 पर बैग. तो 25 बैग्स ग्राम एट द रेट 480 पर बैग, ये 12,000 रुपीज़ का हो गया बेटे. फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 40 बैग्स ओट्स एट द रेट 25 पर बैग. 40 बैग्स ओट्स एट द रेट 25 पर बैग, इट इज़ 1,000 रुपीज़. ये हो गया बेटे 1,000 रुपीज़ हमारा. टोटल हो गया 13,000. 12 and 1 13,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%. ट्रेड डिस्काउंट इज 5%, तो इट विल बी 650. कितना आ जाएगा बेटे? 13,000 में से 650 घटाएंगे बेटे
तो ये बाहर आ जाएगा हमारा 13,000, बाहर आएगी बेटे 13,350 की अमाउंट हमारी बाहर आ जाएगी बेटे 13,350 रुपया। अब हम इसका टोटल करेंगे, बंद कर देंगे इसको, है ना। मई का है, अप्रैल मई है, मई 31 का, तो मई 31 आ जाएगा मंथ की लास्ट डेट, मई 31। परचेज अकाउंट डेबिट करना बेटे, परचेज होती है डेबिट तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब सेल बुक बनाएंगे तो सेल बुक होती है क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसका टोटल जोड़ेंगे हम इसका 70,200, 74,100, 12,350, टोटल इज 1,56,650, इट इज़ द टोटल। तो परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल नहीं लिखेंगे, सिर्फ परचेज लिखना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। आप जानते हैं सेल्स क्या होती है बेटे, सेल्स होती है क्रेडिट, अगर सेल्स होगा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखा जाएगा बेटे। तो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द बुक ऑफ टी.एस. अग्रवाल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की वीडियो मैं फिर दोबारा बनाकर भेजता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पहले से ध्यान से करिए, एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए क्या चीज़ लेनी है बेटे। नंबर 1 क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेनी है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी। दूसरी बात, डीलिंग गुड, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं केवल वही आइटम्स लेंगे, है ना। उसको मैंने बताई दिया आपको, स्टार्टिंग बताया स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी लेंगे, अगर हमारा क्लॉथ का बिजनेस है तो क्लॉथ आइटम लेंगे, उसके अलावा बाकी दूसरी आइटम्स को हम एंट्री नहीं करते।